Greetings everyone, welcome to the lecture 6 of economic survey. So far we have discussed about the uh, trends in Indian economy, and right now in this particular lecture we are going to focus on sector specific information we are going to fetch out from economic survey. Now before I begin, let me tell you that this lecture is going to be a longer one and you have to be very patient throughout the lecture. Why? Because this present lecture has a lot of information for prelims examination. From prelims perspective, we are going to discuss a lot of schemes and initiatives of the government. So sometimes in previous year questions, if you will analyze, you will find that direct statement based questions are asked, and therefore we need to pick out actually the relevant information. So in this particular lecture, we are going to focus on agriculture and food management, from food security to nutritional security. Secondly, we are going to look at industry, which is showing steady signs of recovery. And we are going to discuss services. The service sector is the source of strength, right? In agriculture and food management, see, they are telling that agriculture remains to be the critical to growth and employment in the country. We all know that, right? Agriculture, India is an agrarian economy. In an agrarian economy, it is important how the agriculture is performing. And recently, there were a lot of shocks. Recently, this particular industry has witnessed a lot of shocks. And what are those shocks? For the agriculture, wherever we were import dependent, due to import price or import cost going high, we had seen that there was food inflation. Food inflation was also triggered by certain climatic events, or you can say unconventional weather pattern. Now, because of this unconventional weather pattern, you know that production of wheat has gone down, and it is related to National Food Security Act of 2013. So this is very important for us to understand that agriculture is critical to growth and employment in the country. इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो अफोर्डेबल, टाइमली और इंक्लूसिव होना चाहिए क्रेडिट डिलीवरी के साथ साथ. इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट ने पीएम किसान के तहत इनकम सपोर्ट दिया, फाइनेंस इंस्टीट्यूशनलाइज किया, इंश्योरेंस दिया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, और किसान क्रेडिट कार्ड्स को भी पुश दिया ताकि एक्सेस टू मशीन एंड टूल्स दैट इंप्रूव प्रोडक्टिविटी हैव बीन सिग्निफिकेंट. हॉर्टिकल्चर सेक्टर पे भी इस बार बजट में बात की गई और एलाइड एक्टिविटीज़ और डाइवर्सिफाइड फार्मर्स इनकम के ऊपर बात की जा रही है, मिलेट प्रोडक्शन के ऊपर बात की जा रही है, सस्टेनेबल इंक्लूसिव डेवलपमेंट के ऊपर बात की जा रही है, और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को भी नेग्लेक्ट नहीं कर रहे, बिकॉज फूड प्रोसेसिंग सेक्टर सनराइज सेक्टर की तरह देखा जा रहा है, जहाँ पे स्टोरेज बेटर की फैसिलिटीज़ अगर बढ़ा देंगे तो फार्मर्स के लिए बेटर प्राइसेस बढ़ेंगे. इसी में ई नैम और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रमोशन है उससे क्या हो रहा है, एग्रीकल्चरल मार्केट को भी इम्प्रूव कर रहे हैं. किसान सम्मान योजना, एफएमई, पीएलआई, ये सब स्कीम्स को देखेंगे जहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ इम्प्रूवमेंट मिलेगा, और एक वेल डेवलप्ड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो है वो इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, जैसे कोल्ड स्टोरेज, बेटर लॉजिस्टिक्स, रिड्यूस्ड वेस्टेज, ये सब वैल्यू एडिशन करेगा. फार्मर के रिटर्न्स बेटर होंगे, एम्प्लॉयमेंट प्रमोट होगा और एक्सपोर्ट अर्निंग्स भी बढ़ेगी. यानी कहीं ना कहीं इसमें एक्सपोर्ट का डायमेंशन भी इन्वॉल्व है. और कोल्ड स्टोरेज की जो प्रॉब्लम है इंडिया में, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये नीति आयोग ने बोला था. नीति आयोग की रिपोर्ट में था कि इंडिया में एफिशिएंट कोल्ड स्टोरेज नहीं है और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है कोल्ड स्टोरेज का. अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है कोल्ड स्टोरेज का. उसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो पेरिसेबल फूड प्रोडक्ट्स हैं, पेरिसेबल फूड प्रोडक्ट्स वो सब
डैमेज हो जाते हैं, जैसे सब्ज़ी फल ये ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं कर पाते और इसकी वजह से यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कम होता है। तो इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में एग्रीकल्चर के चैलेंजेस बताए गए और स्कीम्स के बारे में बताया गया है। कोविड-19 के शॉक के बाद भी अलाइड सेक्टर्स जो हैं उन्होंने एक रेजिलेंट ग्रोथ शो की है। पीक पे था, देख सकते हैं आप 2016-17 में, उसके बाद सडन डिप होता है 2018-19 में, थोड़ा बेटर होता है 20 में, और अभी 3% ऑफ द जीडीपी से कंपेयर किया जा सकता है। जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है एग्रीकल्चर में वो भी वापस से 2019-20 कोविड के बाद से अब एक इंक्रीजिंग ट्रेंड में आपको दिखाई देगा। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करें तो ये बढ़ता ही जा रहा है और ये एक अच्छा ट्रेंड है कि इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो जा रहा है, तो प्रोडक्शन कॉन्स्ट्रेंट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। क्यों नहीं चेंज हो रहा भाई? फर्दर सस्टेन्ड इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शंस भी देखा गया। मिलियन टन्स में बात करें तो यू विल फाइंड ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हुआ है अभी, पल्सेस उसके बाद आपको बढ़ते हुए दिखाई देगा, और टोटल फूड ग्रेन्स अबव प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा है। तो सस्टेन्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन भी देखा गया है मिलियन टन्स में। साथ ही में गवर्नमेंट ने एमएसपी को भी इंपॉर्टेंस दिया है टू इंश्योर रिटर्न्स ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब एमएसपी के ऊपर बड़े कॉमन क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये बड़ा कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, तो इससे रिलेटेड बड़े कॉमन क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो 2018-19 के बजट में 2018-19 यानी 2018 में फार्मर्स इन इंडिया वुड बी गिवन एन एमएसपी ऑफ एटलीस्ट 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी एमएसपी जो कैलकुलेट होगी वो 1.5 टाइम्स ऑफ इनपुट कॉस्ट होगी। पहली चीज़ तो हमको यहाँ पे ये दिख रही है। गवर्नमेंट ने 12 खारिफ राबी और कॉमर्शियल क्रॉप्स के लिए, कितने क्रॉप्स के लिए? 22 खारिफ राबी और कॉमर्शियल क्रॉप्स के लिए क्या देती है सरकार? एमएसपी, और ये सीएसीपी द्वारा डिसाइडेड होता है, राइट। 50% का मार्जिन ऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स और चेंजिंग डाइटरी पैटर्न्स को ध्यान में रखते हुए पल्सेस ऑयल सीड प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंसी की बात की जा रही है। तो इस बार इंपोर्ट और में भी दिक्कत हो रही है, और साथ में कह रहे हैं कि डाइटरी पैटर्न चेंज करना है, तो सेल्फ सफिशिएंसी इस बार के एग्रीकल्चर इकोनॉमी में देखी गई पल्सेस में और ऑयल सीड्स में। ठीक है, ऑयल सीड्स के लिए भी क्या होता है? ऑयल सीड्स के लिए भी क्या होता है? यहाँ पे एमएसपी दिया जाता है, राइट। पल्सेस के लिए भी एमएसपी दिया जाता है, राइट। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे आप देख सकते हैं मेज, तुर, मूंग, उड़द, ग्राउंडनट, सोयाबीन, कॉटन, वीट, ग्राम, रेप सीड, मस्टर्ड, इन सभी का जो प्रोडक्शन है आपको ग्रीन वाली लाइन में 2023 में ऑलमोस्ट पिछले साल के कंपैरिजन्स में से इस साल बेटर ही नज़र आएगा। यानी कि पूरे बजट में, पूरे इकोनॉमिक सर्वे में एग्रीकल्चर जो है वो अच्छा ग्रो किया है, तो ये गुड साइन है इंडिया के लिए, राइट। लेट्स मूव अहेड। एग्रीकल्चरल क्रेडिट भी आसानी से मिला है। देखिए, एग्रीकल्चर ग्रो कब करेगा? एग्रीकल्चर ग्रोथ किन किन चीज़ों पे डिपेंडेंट हो सकती है? क्या कभी आपने सोचा है? एग्रीकल्चर ग्रोथ सबसे पहले डिपेंडेंट हो सकती है इनपुट कॉस्ट पे। फार्मर की इनपुट कॉस्ट क्या है? दूसरा, मार्केट अवेलेबल है कि नहीं है, या प्रोक्योरमेंट कैसा है। और एग्रीकल्चर डिपेंडेंट होता है मॉडर्न मशीनरी अवेलेबल है कि नहीं है, मॉडर्न मशीनरी। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर किस पे डिपेंडेंट हो सकता है? मॉडर्न मशीनरी के साथ ही साथ एग्रीकल्चर वेदर पैटर्न्स पे भी डिपेंडेंट होता है, वेदर पैटर्न्स पे भी डिपेंडेंट होता है। वेदर पैटर्न्स में क्या हो सकता है? रेनफॉल कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेनफॉल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल क्या है, ह्यूमिडिटी कैसी है, और क्लाउडी है कि नहीं है, ओपन स्काई है क्या है। साथ में जो सॉइल है, नेचर ऑफ सॉइल, उसके बारे में
फार्मर को नॉलेज है कि नहीं है, फार्मर को नॉलेज है कि नहीं है, उस नेचर ऑफ सॉयल का सर्वे हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब क्या डिसाइड करता है, एग्रीकल्चरल ग्रोथ को डिसाइड करता है। और ये सभी को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो होती है ना, गवर्नमेंट जो होती है ये प्लेज अ मेजर रोल, कैसे, कंटिन्यूअस इंटरवेंशन से। तो यहाँ पे हैसल फ्री क्रेडिट अवेलेबिलिटी एट अ चीपर रेट टू फार्मर्स हैज़ बीन द टॉप प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस इज स्ट्रेट कमिंग फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। क्या किया गया, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1998 में फॉर फार्मर्स टू एम्पावर देम, क्या करने के लिए, टू परचेज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट एट एनी टाइम। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है ये गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया है 1998 में, ताकि फार्मर क्या कर सके, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को परचेज कर सके उधार पे, क्रेडिट पे। दिसंबर 30 2022 में जो बैंक्स इशू करती हैं क्रेडिट कार्ड्स, उन्होंने 3.89 करोड़ एलिजिबल फार्मर्स विद अ केसीसी लिमिट ऑफ 4,51,672 करोड़ ऑलरेडी इशू कर दिया है। गवर्नमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड की जो सर्विसेज हैं उसको फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्रीज को भी सपोर्ट किया है। तो ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे लिए कि फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री में भी अब ये 2018-19 से लागू हो गया है, राइट। और इसकी वजह से ये सेक्टर में भी ग्रोथ मिली है। 17 अक्टूबर 2022 के डेटा की बात माने तो 1 लाख केसीसी जो हैं वो फिशरी सेक्टर में और 9.5 लाख जो हैं वो एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में इशू किए जा सकते हैं। तो अगर आपसे अब ऐसे स्टेटमेंट पूछ दे, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, लेट्स से सिंपल सा एक क्वेश्चन आ जाए आपके पास। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू किसान क्रेडिट कार्ड, है ना। पहले तो आपसे यही पूछ दे, किसान क्रेडिट कार्ड हेल्प्स द फार्मर टू अवेल easy credit for post harvest मैनेजमेंट। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ दे, स्टेटमेंट आपको दे दे, किसान क्रेडिट कार्ड इज अवेलेबल फॉर एनिमल हस्बेंड्री and animal husbandry and agriculture. Kisan credit card can only be implemented in designated northeastern and Himalayan areas. ठीक है, अब आपको मैं ऑप्शंस देता हूं। स्टेटमेंट ऑप्शन ए है, ओनली वन नहीं, ऑप्शन में है 1 and 2, ठीक है। ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 1 ओनली, राइट, ऑप्शन डी 2 ओनली। बहुत ही पुअर ऑप्शंस हैं ये, लेकिन क्वेश्चन आपको समझ में आया। इकोनॉमिक सर्वे का ये जो क्वेश्चन है ये इस तरीके से पूछा जा सकता है किसान क्रेडिट कार्ड से। अब आप इसका आंसर क्या है, व्हाट इज़ द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? द आंसर इज दैट ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो करेक्ट आंसर इज डी, 2 ओनली, राइट। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को अपने
दिमाग में बिठा लीजिएगा कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के रेस्पेक्ट में आपने क्या पढ़ा है कि किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो 2018 ऑनवर्ड से 2018 ऑनवर्ड से किसके लिए अवेलेबल है, फिशरीज़ के लिए भी अवेलेबल है और एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी अवेलेबल है, राइट। लेट्स मूव अहेड। केमिकल फ्री इंडिया में ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग को भी प्रमोट करने की बात की जा रही है इस बार। तो केमिकल और नेचुरल फार्मिंग में केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, फूड ग्रेन्स एंड अदर क्रॉप्स improve soil health and reduces environmental pollution. So these are the benefits. These are the benefits of organic farming, right? And in the benefits, what can we see? We can see that that's saying that natural farming provides chemical fertilizer and pesticides free food grains, which means the first benefit that we can understand is that chemical fertilizers और pesticides जो हैं वो रहते ही नहीं हैं, उनसे फ्री फूड ग्रेन्स रहता है, राइट। दूसरा हमें दिखाई देगा कि सॉइल की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है और तीसरा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी रिड्यूस होता है। इंडिया में 44.3 लाख ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं, विच इज़ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, हाईएस्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडिया में होती है। यहाँ पे 44.3 लाख राइट फार्मर्स हैं। तो जो न्यूज़ लिखी हुई है वही मैं क्यों लिख रहा हूँ, वो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ कि जब भी आप नोट्स बनाएंगे तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। और 59.1 लाख हेक्टेयर एरिया जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग में लाया जा रहा है, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर एरिया भी है, गवर्नमेंट इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है। और यहाँ से बन सकता है आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि विच स्टेट, जैसे ये यूपीएससी में तो पूछता नहीं है लेकिन जान लीजिएगा, विच स्टेट इज फर्स्ट इन इंडिया टू बिकम 100% ऑर्गेनिक। और आंसर होगा आपका सिक्किम वॉलेंट्री अडॉप्टेड बीइंग ऑर्गेनिक अंडर द प्रोसेस ऑफ गेटिंग टोटल कल्टिवेबल लैंड। ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ पे 2010 से स्टार्ट कर दी थी इसने। इट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड टू बिकम फुल्ली ऑर्गेनिक। एंड अदर स्टेट्स इंक्लूडिंग त्रिपुरा और उत्तराखंड, सिक्किम के बाद त्रिपुरा और उत्तराखंड जो हैं उन्होंने भी सिमिलर टारगेट्स अपने बना के रखे हुए हैं। एग्रीकल्चर और फूड मैनेजमेंट में फर्दर हम बात करने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो स्कीम्स हैं उनके ऊपर सबसे पहली स्कीम है परंपरागत कृषि विकास योजना। पहली स्कीम याद रखिएगा, प्रधानमंत्री परंपरागत कृषि विकास योजना। और मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, वैल्यू चेन डेवलपमेंट 2015 में लॉन्च किया गया था। 2015 से क्लस्टर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ये लॉन्च की जा रही है। ये परंपरागत कृषि विकास योजना जो है वो क्लस्टर मोड में 50,000 पर हेक्टेयर और 3 साल तक, इम्पॉर्टेंट है स्कीम के लिए कि 50,000 पर हेक्टेयर 3 साल तक प्रोवाइड किया जाएगा फार्मर को, जिसमें से 31,000 जो है वो इंसेंटिव्स की तरह दिया जाएगा डीबीटी के अंडर। परंपरागत कृषि विकास योजना 16 नवंबर से 32,384 क्लस्टर्स 6.4 लाख हेक्टेयर्स 16.1 लाख फार्मर्स जो हैं वो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। नमामि गंगे प्रोग्राम के अंडर 1.2 लाख हेक्टेयर हैज़ बीन कवर्ड अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। नमामि गंगे भी कहीं ना कहीं सॉइल हेल्थ के ऊपर काम कर रहा है, नमामि गंगे भी, राइट। और ये वैल्यू चेन डेवलपमेंट वाली स्कीम की बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में प्रमोट कर रहा है। 177 FPOs ऑलरेडी बना दिए गए हैं। तो आपको ये स्कीम्स जो हैं वो याद रहेगी कि यार ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो स्कीम्स हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ से, इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आप धैर्य से इन स्कीम्स को प्रिपेयर करते हुए चलें। फर्दर बात करते हैं हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की, है ना, किसान सम्मान निधि। इसमें क्या हुआ था, किसान सम्मान निधि के अंदर सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इसमें किसानों को इनकम के लिए इनकम सपोर्ट दिया गया था। ये याद रखना है
किसानों को क्या दिया गया था, पीएम किसान में इनकम सपोर्ट दिया गया था। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है टू सप्लीमेंट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ लैंड होल्डिंग ऑफ फार्मर्स। फाइनेंशियल बेनिफिट 6,000 पर ईयर इज ट्रांसफर्ड इनटू बैंक अकाउंट्स ऑफ फैमिलीज थ्रू डीबीटी, राइट। वन ऑफ द लार्जेस्ट डीबीटी स्कीम्स इन द वर्ल्ड बोला गया प्रधान पीएम किसान को। 11.3 करोड़ फार्मर्स को इस स्कीम में कवर किया गया और 3 साल से ये स्कीम जो है चल रही है और 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का बेनिफिट फार्मर्स को पहुंचा चुकी है। फार्मर्स की अगर बात करें किस तरीके से पीएम किसान ने हेल्प की, तो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को भी प्रमोट किया है। प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, इसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है जिसने ओवरऑल इंप्रूवमेंट ऑफ द फार्म सेक्टर में कंट्रीब्यूट किया है। तो पीएम किसान इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6,000 पर ईयर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। उसके बाद जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या है, एक तरह की फाइनेंसिंग फैसिलिटी है। 2020 से 2032 तक चलेगी। फॉर अ पीरियड ऑफ अराउंड 12 ईयर्स दिस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड वुड बी वैलिड एंड प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज फॉर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट यानी फसल के कट जाने के बाद जब उसको मार्केट में बेचा जाता है या स्टोर किया जाता है, तो पोस्ट हार्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है, नॉट फॉर सोइंग सीजन, नॉट बिफोर हार्वेस्टिंग, राइट। यहाँ पे कम्युनिटी फार्म एसेट्स बनाना है, 3% इंटरेस्ट सबवेंशन और क्रेडिट गारंटी सपोर्ट है फार्मर्स को। AIF स्कीम जो है वो बहुत सारे स्कीम्स के साथ कन्वर्जेंस में इंप्लीमेंट की जाएगी विद स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कैन प्रूव टू बी अ माइलस्टोन इन इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। सिंस इट्स इंसेप्शन 13,681 करोड़ जो रुपए सैंक्शन कर दिए जा चुके हैं और 18,133 प्रोजेक्ट जो हैं इसके अंडर ऑलरेडी कवर्ड हो चुके हैं, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जैसे कि आपको बताया था हमने कि क्रॉप इंश्योरेंस जो है वो फार्मर को एक तरीके का सोशल सिक्योरिटी देता है, फार्मर को एक तरीके की सोशल सिक्योरिटी देता है जहाँ पे अनसर्टेन इवेंट्स की वजह से अगर क्रॉप फेलियर या क्रॉप डैमेज हो जाए तो उसको क्या मिलता है, इंश्योरेंस का पैसा मिलता है। ये लार्जेस्ट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है दुनिया में, सबसे बड़ी लार्जेस्ट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, जिसमें 5.5 करोड़ एप्लीकेशंस हर साल आती हैं। थर्ड लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ द प्रीमियम रिसीव्ड। The scheme promises minimal financial burden on the farmer. Farmers paying only 1.5% and 2% of the total premium for Rabi and the Kharif seasons respectively, with center and state governments bearing the most of the premium cost. So if you take this scheme, you only have to pay 1.5% and 2% of the total premium. Most of the money is already paid by the government. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ऊपर और चर्चा करेंगे डिटेल में फ्रॉम ये इकोनॉमिक सर्वे के डॉक्यूमेंट से डायरेक्टली लिया गया बॉक्स है, जिसमें आप पाएंगे कि इकोनॉमिक सर्वे में ये जो स्कीम है इसको करना बहुत ज़रूरी है, राइट। 2016 में ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी खारिफ सीजन में, टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवरेज टू फार्मर्स इन केस ऑफ क्रॉप फेल्योर, हेल्पिंग स्टेबलाइज देयर इनकम्स। ये स्कीम को जनरल इंश्योरेंस कंपनीज इंप्लीमेंट करती हैं। प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट स्कीम इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इसको समय समय पे मॉडिफाई करते रहते हैं पॉलिसी रेजिम या पॉलिसी इंटरवेंशन के साथ, जैसे जैसे समझ में आए कि क्रॉप इंश्योरेंस के लिए और क्या क्या करना है। क्रॉप में क्या क्या कवर है स्कीम के अंदर, तो फूड और ऑयल सीड क्रॉप्स, एनुअल कॉमर्शियल या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स सभी कवर्ड हैं इसके लिए, राइट। और ये इन सब के ऊपर एक सर्वे होता है, जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे, तो उसके अंदर होता है इस चीज़ को। इंश्योरेंस कंपनी जो स्टेट है वो 3 इयर्स के लिए एक साथ कर लेते हैं। ये स्कीम इंप्लीमेंट की जाती है एरिया अप्रोच बेसिस पे, यानी कि एडमिसिबल क्लेम्स आर वर्कड आउट एंड पेड डायरेक्टली टू द इंश्योर्ड फार्मर्स अकाउंट बाय इंश्योरेंस कंपनीज ऑन द यील्ड डेटा बेस्ड ऑन द रिक्विजिट नंबर ऑफ सीसीज पर यूनिट फॉरबिस्ड, राइट। Losses due to localized risk of hailstorm, landslides, inundation are calculated on an individual insured farm basis. इसके लिए कोई जनरल नहीं है। अगर लोकलाइज्ड रिस्क हो, जैसे कि हेल स्टॉर्म आ गया, लैंडस्लाइड हो गई, पानी कहीं पे भर आया, तो वो इंडिविजुअल इंश्योर्ड फार्म बेसिस के बेसिस पे किया जाता है। ये जॉइंट कमेटी के द्वारा ये जो क्लेम्स हैं वो असेस किए जाते हैं
जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और इंश्योरेंस कंपनी साथ में बैठ के क्लेम सेटलमेंट करती है। तो इसका मतलब कि ये अच्छी चीज़ है कि जो लोकलाइज्ड इवेंट्स हैं, लोकलाइज्ड इवेंट्स की वजह से भी जो डैमेज होता है वो भी असेस करके मिल जाता है आपको। उसके बाद दूसरा है मिध, दैट इज मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर को भी बड़ा प्रमोट किया जा रहा है। हॉर्टिकल्चर का मतलब ये है जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रूट और ट्यूबर क्रॉप्स, स्पाइसेस, फ्लावर्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रो की जाएं, राइट। तो several expert groups have identified horticulture as high growth area and it is a source of buoyant income. It is going to increase the income and improve resilience for farmers, right? The interventions include introducing improved varieties of qualities of seeds. तो हॉर्टिकल्चर को फार्मर की इनकम सपोर्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है और इसमें सीड्स की बेटर क्वालिटी को, प्लांटेशन क्रॉप्स की के लिए इंसेंटिव, क्लस्टर डेवलपमेंट और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा। थर्ड एडवांस एस्टिमेट्स की माने तो 342.3 मिलियन टन्स से भी ज़्यादा का इस बार हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन हुआ है। गवर्नमेंट ने 55 हॉर्टिकल्चर सेक्टर्स जो हैं, क्लस्टर्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, जिसमें 12 को क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर ले लिया है। अब क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, तो जैसे ही आपके पास आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये हॉर्टिकल्चर के प्रमोशन और हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ये प्रोग्राम किया गया है ताकि जोग्राफिकल स्पेशलाइजेशन जो है हॉर्टिकल्चर क्लस्टर्स का वो प्रमोट किया जा सके। कहीं पे जो फ्रूट है किसी तरह का, जैसे सेब हैं पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा होते हैं, अंगूर और ये जो आपके जो लोकल सीजनल वेजिटेबल्स हैं वो लोकल एरिया के हिसाब से प्रमोट किया जाएगा। इंटीग्रेटेड और मार्केट लेड डेवलपमेंट होगा, इंटीग्रेटेड मार्केट लेड डेवलपमेंट ऑफ प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज़, सभी कुछ पूरी सप्लाई चेन में इंक्लूड कर रहे हैं। तो मिड, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड ये डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, याद रखिएगा इसके अंदर क्या हो रहा है, राइट। प्री प्रोडक्शन, मार्केटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन सब कुछ कवर कर रहे हैं। लेट्स मूव अहेड। ई नाम स्कीम के ऊपर चर्चा करनी है। तो ये ई नाम स्कीम क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट अनाउंस किया था 2016 में, जहां पे ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट कॉम्पिटिटिव बिडिंग सिस्टम के तहत फार्मर्स को रेम्यूनरेटिव प्राइसेस मिल सके। ई नाम के अंदर अंदर फार्मर्स भी रजिस्टर करते हैं और ट्रेडर्स भी रजिस्टर करते हैं और बोली लगाई जा सकती है, बिडिंग होती है और किसान को डायरेक्ट क्या करते हैं, बायर को डायरेक्टली सेलर से जोड़ रहे हैं फॉर देयर प्रोड्यूस। अंडर एग्रीकल्चर और फूड मैनेजमेंट में तो फ्रॉम फूड सिक्योरिटी टू न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, द ई नाम स्कीम, द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फ्री सॉफ्टवेयर एंड असिस्टेंस ऑफ 75 लाख पर APMC मंडी फॉर रिलेटेड हार्डवेयर। यानी हर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी को, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी जो कि एक राज्य सरकार के अंदर होती है, अंडर स्टेट गवर्नमेंट होती है ना, ये मंडी होती है। इसको ई नाम इम्प्लीमेंट करने के लिए 75 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। इसका मतलब कि सिर्फ प्राइवेट नहीं, APMCs भी इसके अंदर इंक्लूडेड होंगी। और क्वालिटी असाइंग इक्विपमेंट्स जो होते हैं, जैसा आपने देखा होगा क्वालिटी असाइंग इक्विपमेंट्स का होते हैं, कई बार रील देखे होगी आपने, चाइनीज़ हैं वो सब छोटे संतरों को किनारे करते जा रही है मशीन और बड़े संतरे एक पॉलीथीन में भरते जा रहे हैं। तो ऐसे इक्विपमेंट्स को क्वालिटी असाइंग इक्विपमेंट्स कहते हैं। और बाकी क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग, कंपोस्ट यूनिट, इन सब को ई नाम के अंदर डेवलप करना है। 31 दिसंबर 2022 के डेटा के हिसाब से 1.7 करोड़ फार्मर्स और 2.3 लाख ट्रेडर्स ऑलरेडी ई नाम पोर्टल के अंदर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो ये रिवॉल्यूशनाइज करेगा, ये डिजिटाइज भी करेगा, ये रिवॉल्यूशनाइज और मैकेनाइज करेगा किसको, आपके फार्मिंग सेक्टर को। मैकेनाइजेशन पे डिपेंडेंट है, राइट। सप्लाई चेन्स को भी टारगेट करता है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलेट्स को एक कोर्स सीरियल्स जो होते हैं इनको प्रमोट कर रही है, ताकि क्योंकि ये देखिए कोर्स सीरियल्स की खास बात क्या है, इनको क्यों प्रमोट किया जा रहा है, मिलेट्स को क्यों प्रमोट किया जा रहा है। कोर्स सीरियल्स की खास बात ये है कि ये लेस वाटर डिपेंडेंट है, ये यानी कि पानी इनको बहुत कम चाहिए रहता है, लेस
और ये हाईली न्यूट्रिशियस फूड हैं, ये हाईली न्यूट्रिशियस फूड हैं, ये WHO भी मानता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो इनको अपने फूड सिक्योरिटी के अंदर 2018 में इंक्लूड कर लिया था। साथ ही साथ ये क्लाइमेट रेजिस्टेंट भी हैं, ये क्लाइमेट रेजिस्टेंट भी हैं, और फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट इनका भी कम है, इनको फर्टिलाइज़र भी कम चाहिए रहता है। तो अगर मिलेट प्रोडक्शन में इंडिया आगे आ जाएगा तो अल्टीमेटली फार्मर की जो इनकम है, फार्मर की जो इनकम है वो भी प्रमोट होती है, फार्मर्स इनकम भी प्रमोट होती है। साथ में न्यूट्रिशियस फूड जो है वो भी सही होता है। हार्ट डिजीज़ेस जो कि ख़राब खाने से हो सकती हैं, डायबिटीज़, और इन सभी का क्योर जो है वो भी मिल जाता है, राइट। और इसी पे अगर हम नेट एक्सपोर्टर बन जाएं तो इंडिया को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो मिलेट इम्पॉर्टेंट हैं, सोरघम, प्रोसो मिलेट, पर्ल मिलेट, कोदो मिलेट, लिटिल मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, फिंगर मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट। प्लीज़ रिमेंबर द नेम्स, प्लीज़ रिमेंबर द नेम्स। बड़ा प्रोमिनेंट क्वेश्चन, इससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो तो यही आ सकता है। आई थिंक इट वुड बी वेरी अनवाइज ऑफ अस टू इवन थिंक दैट वी कैन रिमेंबर द सोर्स ऑफ द मिलेट्स, बट इफ वी टॉक अबाउट लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स, they happen in two states, that is Rajasthan and Maharashtra, right? Rajasthan and Maharashtra, and it can be increased to other areas as well. तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अपने 75th सेशन में मार्च 2021 को 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया था। मिलेट्स आर स्मार्ट फूड्स जिनकी हाईली न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, क्लाइमेट रेजिलेंट होते हैं और UNSDG को अचीव करने में मदद करते हैं। दे ऑल्सो आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हैव मैमथ पोटेंशियल टू जनरेट लाइवलीहुड, इंक्रीज फार्मर्स इनकम, ensure food and nutritional security all over the world, ensure food and nutritional security all over the world. Now economic survey states that India produces 51 मिलियन टन्स लगभग हम प्रोड्यूस करते हैं, जो कि 80% एशिया का 20% ग्लोबल प्रोडक्शन को मैच करता है। 80% एशिया में लगभग 80% मिलेट्स भारत में होता है, और ग्लोबल प्रोडक्शन की बात करें तो 20% हमारे यहाँ पे होता है। यील्ड जो है वो एवरेज यील्ड जो है पर हेक्टेयर वो ग्लोबल एवरेज से काफ़ी बेहतर है। ग्लोबल एवरेज यील्ड जो है 1229 किलोग्राम पर हेक्टेयर है, और भारत में 10 किलोग्राम ज़्यादा 1239 किलोग्राम पर हेक्टेयर, राइट, 1249 है ना। मिलेट जो है इंडिया में, ये याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, दे आर प्राइमरीली अ खारिफ क्रॉप। खारिफ सीजन में मिलेट्स को उगाया जाता है। ग्रोन इन रेन फेड कंडीशंस, इनको रेन ज़्यादा चाहिए नहीं रहती है, पानी ज़्यादा चाहिए नहीं रहता है, तो रेन फेड कंडीशंस में उगाते हैं बिकॉज दे रिक्वायर लेस वाटर एंड एग्रीकल्चर इनपुट्स दैन अदर स्टेपल क्रॉप्स। गवर्नमेंट ने मिलेट्स को न्यूट्री सीरियल्स की तरह घोषित कर दिया था 2018 में, ये मैं आपको बता चुका हूँ। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंदर भी मिलेट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है न्यूट्रिशनल सपोर्ट देने के लिए, राइट। एक लगभग 14 राज्यों में तो सब मिशन के रूप में भी चल रहा है। तो मिलेट की इम्पोर्टेंस के ऊपर इतने सारे डेटा आपको मिल गए हैं, आप इन सभी को अपने आंसर में भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके ऊपर अगर MCQ आया तो आप भी देख सकते हैं किन किन एरियाज से स्टेटमेंट्स बनाए जा सकते हैं। सहकार से समृद्धि, दैट इज अबाउट कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स in agriculture sector, right? Role of cooperatives in agriculture sector में सहकार से समृद्धि जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशरी सेक्टर में रूरल पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी देती हैं, साथ पे फाइनेंशियल सेफ्टी नेट भी देती हैं, जहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच होती है। कोऑपरेटिव्स जो हैं कहते हैं कि रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का ज़रिया है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है।
भारत में 8.5 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रजिस्टर्ड हैं, 29 करोड़ मेंबर्स हैं, जिसमें मार्जिनलाइज्ड और लो इनकम ग्रुप्स वाले लोग रूरल एरिया से ज़्यादा हैं। 98% ऑफ विलेजेस जो हैं वो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, ये एक तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी है, गवर्नमेंट की कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ जो कि गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होती है। उसमें 98 करोड़ फार्मर्स, ऑलरेडी 98% विलेजेस जो हैं वो कवर्ड हैं। सहकार से समृद्धि के विजन को रियलाइज करने के लिए दोबारा से कोऑपरेटिव सेक्टर की ग्रोथ में बल दिया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा हमारे सामने है कि 19% एग्रीकल्चर फाइनेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए से पैदा होता है, 19% क्रेडिट जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में है वो कोऑपरेटिव सेक्टर से आता है। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी बनाई गई 2021 में, और आपको पता है अमित शाह उसके मिनिस्टर हैं। गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ को प्रमोट करने के लिए। अभी उन्होंने 63,000 फंक्शनल पीएससीज को कंप्यूटराइज किया है, प्रिपरेशन ऑफ बायलॉज एंड एनेबलिंग पीएससीएस टू एक्सपैंड देयर एक्टिविटीज़। गवर्नमेंट ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 was also enacted by repealing Multi-State Cooperatives Act of 1984. Now, ultimate purpose was to democratize the functioning and autonomous working of multi-state cooperative societies in line with the cooperative principles. Very important. Multi-State Cooperative Societies Act 2002 was enacted. And now, if you will read further, you will find that Lok Sabha में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर अमेंडमेंट्स जो है इस साल इंट्रोड्यूस किए गए थे विंटर सेशन में। 1528 रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर, यानी ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एक स्टेट से ज़्यादा स्टेट्स में काम कर रही हैं, राइट। इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव्स हैं, फॉलोड बाय दिल्ली रैंक 2, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश। प्लीज़ रिमेंबर दिस डेटा ऑल्सो दैट महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, फॉलोड बाय दिल्ली, एंड तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश। तो ये हमने देखा कि एग्रीकल्चर में किस तरीके से गवर्नमेंट ऑल राउंड होलिस्टिक डेवलपमेंट को लेके चल रही है। यहाँ पे ये डेटा आपके सामने वापस से है कि टॉप 10 स्टेट्स विद मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स, इसमें आप देखेंगे लीड कर रहा है महाराष्ट्र, दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश। चौथे पे तमिलनाडु और राजस्थान, ये टॉप 5 स्टेट्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। Followed by little cooperative societies are present in West Bengal, Gujarat, Karnataka, Madhya Pradesh and Kerala, right? Food processing sector, at last we are coming to the food processing sector. बहुत हुई बात खेती की, वाणिज्य की, अब बात कर रहे हैं फूड प्रोसेसिंग की। और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में इंडिया का जो फ्यूचर डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा लाई करता है, बिकॉज इंडिया में इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को एक साथ कोई और सेक्टर नहीं प्रमोट कर सकता जितना अच्छा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर कर सकता है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, जो खेत से मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स तक चीज़ें आए। पिछले 5 सालों में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, 8.3% का ग्रोथ रेट है। लेटेस्ट एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो 12.2% पर्सन्स जो रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं वो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं। यानी कि जो काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पोटेंशियल है इसका, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पोटेंशियल जितना है इसका, राइट। इसीलिए देखिए इसको क्या कह रहे हैं, सनराइज सेक्टर कह रहे हैं, इसीलिए इसको सनराइज सेक्टर कह रहे हैं। एग्री फूड प्रोडक्ट्स का जो वैल्यू है, प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट्स 10.9% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स, यानी कि एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बहुत है इसका। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा है। विद द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोसेस फूड आइटम्स इन द कंज्यूमर बास्केट, न्यू होराइजन्स आर नाउ ओपन फॉर बोथ एग्रीकल्चर एंड द इंडस्ट्री to push diversification and commercialization in farming, improvement in the efficiency of resource use, enhancement in the income of farmers, expansion in the avenues to export agro foods, and generation of employment opportunities. Optimum development of the food processing sector will contribute significantly to tackling several developmental concerns such as disguised rural unemployment in agriculture, rural poverty, food security, food inflation, improved nutrition, prevention of wastage of food.
This is very important for the concluding lines, that what is the potential of food processing sector, why it is important to develop it. बिकॉज जो भी डेवलपमेंटल कंसर्न्स होते हैं, जैसे कि डिस्गाइज्ड रूरल अनएम्प्लॉयमेंट. और डिस्गाइज्ड रूरल अनएम्प्लॉयमेंट आपने पढ़ा होगा आपके इकोनॉमिक्स में, नहीं पढ़ा है तो जान लीजिए क्या होता है. जैसे कि एक ही खेत के अंदर क्या होता है, पूरा परिवार लगा रहता है खेती करने के लिए, तो उसका जो पैसा आता है काम का, वो खेत के मालिक के पास रहता है. बाकी परिवार के जो लोग लगे रहते हैं उनकी कोई इनकम नहीं होती है. तो वो डिस्गाइज्ड रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की तरह हो जाता है कि काम तो कर रहे हैं पर कैपिटा इनकम में कुछ नहीं आ रहा है. तो डिस्गाइज्ड रूरल अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है. रूरल पॉवर्टी, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन और इन्फ्लेशन और वेस्टेज ऑफ फूड, सब कुछ क्या होता है, चेक होता है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से. Recognizing the abundant potential of the sector, the government has been at the forefront in various interventions to develop the food processing. इसमें प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज रिमेंबर दिस स्कीम, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, that is going to provide financial assistance by Ministry of Food Processing Industries, right? Provide financial assistance for the overall growth and development of the food processing sector. Under Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana, 677 projects have been completed till December 31st, 2022. This ministry also launched 2020 में Prime Minister's Formalization of Micro Food Processing Enterprises PMFE scheme under Atmanirbhar Bharat to enhance competitiveness of individual micro enterprises in the unorganized segment, promote formalization of this sector by providing financial technical business support, right? 2 lakh micro units in the country. Now, Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana is providing loans by Ministry of Food Processing, whereas PMFE, Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises, PMFE में फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस में जो अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट हैं, यानी कि ऐसे नहीं छोटे मोटे लोग जो कि घर से नेचुरल जूस और ये सब चीज़ें बना रहे हैं, उन सब को क्या किया जाएगा, फॉर्मलाइज किया जाएगा और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाई जाएगी. देखिए यूपीएससी में इंपॉर्टेंट क्या होता है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन यूपीएससी? सी स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स आर इंपॉर्टेंट. You can't deny that government schemes are not important. But with government schemes, we tend to forget the focus on schemes का जो objective है. The objective of the schemes is of utmost importance. This is very very important. जो scheme जो है उसका उद्देश्य क्या है. तो दोनों स्कीम, किसान संपदा योजना और पीएमएफई का जो ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पे हमने लिखा है, राइट. दिसंबर 31, 2022 तक 15,095 लोन्स वर सैंक्शन. द स्कीम अडॉप्ट्स 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट. याद रखिएगा फॉर्मलाइजेशन में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है. टू रीप द बेनिफिट ऑफ स्केल इन प्रोक्यूरिंग इनपुट्स, शेयर्ड सर्विसेज एंड मार्केटिंग प्रोडक्ट्स, राइट. 137 यूनिक प्रोडक्ट सो फार हैव बीन आइडेंटिफाइड. अब इसी के साथ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए, प्लिसफी नाम की, जो कि मार्च 2022 में अनाउंस की गई थी, जहां पे इन्वेस्टमेंट को इंसेंटिवाइज करेंगे ग्लोबल फूड चैंपियंस बनाने के लिए. सेक्टर विथ हाई ग्रोथ पोटेंशियल जो माना जा रहा है, जैसे मरीन प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, रेडी टू ईट, रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स आर कवर्ड फॉर सपोर्ट, राइट. 149 एप्लीकेशंस हैव बीन सेलेक्टेड फॉर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. पीएलआई स्कीम जो है मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए भी एक्सटेंड की गई, तो पीएलआई स्कीम बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही है. यहाँ पे 800 करोड़ का आउटले दिया गया है. 33 एप्लीकेशंस बोथ ऑर्गेनिक हैव बीन ऑलरेडी सेलेक्टेड. तो गवर्नमेंट इज फोकसिंग टू मच ऑन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एंड दिस इज वेरी एविडेंट. नाउ वी आर मूविंग टू द फेज 2 ऑफ आवर लेक्चर, फेज 2 ऑफ आवर इकोनॉमिक सर्वे, लेक्चर 6, एंड दिस इज अबाउट इंडस्ट्रीज, राइट. So this will be covered in the second part of your economic survey, lecture 6, right? Do not forget to watch that. So far we have discussed the agriculture sector and the important schemes. So please make sure that before you continue with
the industry wala part and the services wala part that is about to come, you are thorough with what the agriculture sector has in with regards to with respect to economic survey. All right, then I'll see you in the next part of lecture 6.